اور حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی ہونے پر عوام خاصے خوش ہیں۔ لاہور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ حکومت عوام کا سوچتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پیٹرول کی قیمت میں بڑی اور واضح کمی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ PNN زہیب حسن کاظمی سے۔ جی زہیب، بتائے گا کیا کہتے ہیں شہری؟ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ کمی تو کی گئی ہے، لیکن یہ کمی ناکافی ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، اس وقت میں پیٹرول پمپ لاہور کے میں ایک موجود ہوں۔ سر کیا کہیں گے، پیٹرول جو ہے وہ 8 روپے لیٹر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے؟ سر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے کچھ ریلیف دی ہے عوام کو۔ ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ اور پرائسز ریڈیوس کریں، ایٹ لیسٹ کوئی 50 روپیز اور کم ہونے چاہیے ان فیوچر ڈیز میں۔ جو عوام ہے وہ اس بات پر بھی پر امید ہے کہ اب رشیا سے پیٹرول یہاں پر آئے یا پاکستان حکومت جو ہے وہ مزید بہتری لانے کی کوشش کرے گی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اور واضح کمی جو ہے وہ لائی جائے گی۔ خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کچھ ہی دیر بعد ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر بینچ میں شامل ہیں، جبکہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت، جو کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسیہ، بتائے گا سماعت کب شروع ہوگی؟ یہ جا رہا تھا کہ 12:15 بجے جو ہے وہ سماعت کا آغاز ہو جائے گا، لیکن تاحال جو ہے وہ یہ سماعت شروع نہیں ہو سکی اور اب سے کچھ دیر بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ سماعت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو عدالتی اصلاحات سے متعلق ہے، چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کے بعد جو ہے وہ متفقہ طور پر اس کو پاس کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس لیتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دے کر اس پر جو ہے وہ عمل درآمد سے روک دیا تھا۔ 8 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس نے اس کیس کی اس سے قبل بھی سماعت کی اور آج بھی وہی 8 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے بارہا یہ استدعا کی گئی ہے اس معاملے پر جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ ہیئرنگ پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور جواب جمع کروانے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ عدالتی اصلاحات یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سے متعلق جتنی بھی پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کابینہ کے اندر جتنی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت ہوئی تھی، جس پروسیس کے تھرو اس کو جو ہے وہ پاس کیا گیا، وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ عدالت نے طلب کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ وفاقی حکومت نے وہ تمام تر ریکارڈ فراہم نہ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا۔ اور اگر بات کریں ہم سیاسی جماعتوں کی، تو تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے جو ہے وہ جواب جمع کروایا جا چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ پر یہ عدلیہ کی آزادی پر اور اب سے کچھ دیر میں باقاعدہ طور پر سماعت کا آغاز ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سماعت میں کیا قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آسیہ کوثر، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ بات کریں آڈیو لیکس تحقیقات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے نجم ثاقب کی طلبی کا نوٹس معطل کر دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے، خصوصی کمیٹی نے کس اختیار کے تحت نوٹس کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریوں کی آڈیو ٹیپ اور آڈیو لیکس پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کر لی۔ وفاق، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور پی ٹی اے کو بھی پٹیشن میں فریق بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکرٹری قومی اسمبلی سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پٹیشن پر پیراوائز کامنٹس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کو آڈیو لیکس پر خصوصی کمیٹی میں طلبی کا سمن معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کے 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے کے مطابق اعتزاز احسن، مختوم علی خان، میاں رضا ربانی اور محسن شاہ نواز رانجھا عدالتی معاونین مقرر کیے گئے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے؟ اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکانزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے؟ غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के एहतराम में तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा, जबकि पटिशनर नजमुस साकिब को खुसूसी कमेटी की जानिब से 25 मई को तलब करने का समन मुअत्तल रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट की बात करें। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के 11 अजला में PTI कारकुनों की नज़रबंदी के अहकामात कल अदम करार दे दिए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशि समेत दीगर अफराद की नज़रबंदी के अहकामात खिलाफ कानून करार। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है और डिप्टी कमिश्नर के फैसले खुद MPO की खिलाफ वर्जी है। अदालती फैसले में मजीद क्या कहा गया है, बता रहे हैं सुलेमान अमान अपनी इस रिपोर्ट में। PTI के लिए बड़ा रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने सूबे के 11 अजला में PTI कारकुनान की नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने अपने फैसले में कहा कि 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में आने वाला रद्द-ए-अमल अफसोसनाक था। हुकूमत ने बगैर सोचे समझे नजरबंदी के लातादाद अहकामात जारी किए। हुकूमत के पास अगर कोई शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए काफी वक्त था। 9 मई के हैरान कुन अदालती फैसले में कहा गया है कि वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मस्क शुदा तस्वीर पेश की। अमनो अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। गिरफ्तार अफराद को इल्जामात का पता तो होना चाहिए ताकि वो अपना दिफा कर सकें। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हर नोटिफिकेशन में सिर्फ DPO की रिपोर्ट पर शहरियों को जेलों में डाल दिया गया। अदालत आलिया के फैसले में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से नजरबंदी का फैसला खुद MPO 1960 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पेशावर के क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूलों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया है। आपको बताएं कि बच्चों को 9 और 10 मई को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में रेडियो पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे बताया गया। असातिज़ा ने कहा कि जिस तरह कौमी एहसासों को नुकसान पहुंचाया गया, इस पर हमारा सर शर्म से झुक गया है। कैसे इन लोगों ने एहतजाज के नाम पर खेल खेला। तलबा का कहना था कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी इस पर तशद्दुद वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। तो पेशावर के क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूल्स ने भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया है और बच्चों को 9 और 10 मई को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में रेडियो पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे बताया गया। शहरयार आफरीदी की अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी और मुतल्लिका अदालत में पेश न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। वकील ने दलाइल दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी की गई और किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने स्टेट काउंसिल को हिदायत की है कि अब तक मुतल्लिका अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया, कल तक इस मामले पर जवाब दें। वकील ने कहा, आज हिदायत के साथ हमारी दरख्वास्त निपटा दें। कल मेन केस भी लगा हुआ है। शहरयार आफरीदी को डेथ सेल में रखा गया है। आपने डेथ सेल से निकालने का ज़बानी हुक्म दिया था, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, यह कैसे हो सकता है कि हमारे ऑर्डर की तामील ना की गई हो। तौहीनी अदालत का केस है, इसको हम निपटा नहीं रहे, कल दोबारा समाअत रखेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर में अस्करी टावर पर हमला जलाओ घिराव के केस में असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली गई है। ATC का 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म ATC जज एजाज अहमद बुट्टर ने केस की समाअत की है। अस्करी टावर पर हमला जलाओ घिराव का केस है। असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा पीनन सुलेमान अमान से। जी सुलेमान, बताइएगा। आज बिल्कुल सारे दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर की अस्करी टावर हमला और जलाओ घराव के मुकदमे में 13 जून तक अबूरी जमानत जो है मंजूर कर ली है। असद उमर अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए। सारे दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने केस पर समाअत की है। अदालत ने 1-1 लाख रुपए जमानती मुचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया है। साबिक वफाकी वजीर के राना मुदस्सिर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि असद उमर को थाना गुलबर्ग में नामजद किया गया है इस मुकदमे में, और ये इतलात है कि असद उमर उस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में मुकीम थे और इनका तौर पर से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने 13 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर लिया और पुलिस को 13 जून तक असद उमर को गिरफ्तार करने से रोक दिया और आइंदा ठीक है, 13 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। सुलेमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आपको बताएं कि सियासी जोड़ तोड़ पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और मुस्तक़बिल की इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत और इंतखाबी इत्तेहाद के लिए जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन जाने का फैसला किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के तमाम साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से उनके राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। जहांगीर तरीन जो कि सियासी मैदान में खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अब खबर ये आ रही है कि वो लंदन नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। तफसीलात जानने के नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नई जमात की तश्कील के लिए जहांगीर तरीन का मिशन जो है वो जारी है। वफाकी दारुल-हुकूमत में क़याम के दौरान उन्होंने तहरीक इंसाफ के जितने भी साबिक़ अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स थे उनके साथ अपने राब्ते मुकम्मल किए हैं। कुछ से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तहरीक इंसाफ के 50 से ज़्यादा साबिक़ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से भी वो मिल चुके हैं और वो तरीन ग्रुप को अपनी हिमायत का यकीन दिला चुके हैं। और तरीन की जानब से ये बात बताई गई है कि कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बनाना चाहते, वो एक नई सियासी जमात जो है वो तश्कील देना चाहते जो कि कौमी सतह की हो और इस सिलसिले में वो मुशावरत जारी रखेंगे। दूसरी तरफ आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून से एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से जहांगीर तरीन ने लंदन जाने का फैसला किया। ज़ायका कहना है कि जून के दूसरे हफ्ते में उनकी लंदन रवानगी जो है वो मतवक्के है, जहाँ वो नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो जहांगीर तरीन का हमायत याफ्ता ग्रुप है वो हुकूमत में शामिल है और इसी वजह से उनका ये मौक़िफ़ लिया गया है कि वो नून लीग के साथ आइंदा की सियासी हिकमत अमली और ताउन के तरीक़ाकार पर बात करें और वो लंदन में इसी हवाले से जो है वो मुलाकातें भी करेंगे। जी ठीक है, यहाँ की मुलाकातों को निपटा के अब अहम मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो रहे हैं जहांगीर तरीन। शुक्रिया सिद्दीक साजिद अपडेट करने के लिए। और दूसरी जानिब मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म हैं। लाहौर में आज भी मसरूफ दिन गुजारेंगे। ज़रा के मुताबिक वो आज पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब और लाहौर की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। कायम मकाम सदर राना फारूक सईद, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा को बिलावल हाउस बुला लिया गया, जहाँ वस्ती पंजाब से PTI के 6 बासर लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN हैदर खरल से। हैदर खरल, बताएगा आज क्या मसरूफियात होंगी आसिफ अली जरदारी की? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी जो है वो सरगर्म है और आज बिलावल हाउस में उनका जो दिन है वो काफी मसरूफ गुजरेगा। और आसिफ अली जरदारी ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनको बिलावल हाउस तलब कर लिया गया है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी जो है वस्ती पंजाब के सैयद हसन मुर्तज़ा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है शहजाद सईद भी हैं, उनको बिलावल हाउस तलब किया गया है। और बताया जा रहा है कि आज वस्ती पंजाब से कुछ बाअसर जो शख्सियात हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगी और आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे और आइंदा जो इंतखाबात हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी आसिफ अली जरदारी की जानिब से। और पार्टी को अहम जो हदायत है वो भी जारी की जाएगी और आगे पीपल्स पार्टी को किस तरह से कल की बात की जाए तो जो जनूबी पंजाब से 26 जो रहनुमा हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था, जिसमें साबिक MNA और MPA जो है वो शामिल है। और आज आसिफ अली जरदारी की जो चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान है और आइंदा का जो सियासी लाएअमल है उस पर बातचीत जो है वो चौधरी शुजात से भी की जाएगी। ठीक है, हम मुलाकातें मुतवक्के हैं, आइंदा का लाएअमल भी डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हैदर खरल हमें अपडेट करने का। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है उसकी तरदीद करता हूँ। ज़ैन अहमद कुरैशी का ट्वीट लिखा, PTI एक नज़रिए का नाम है, हम तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज तक सिर्फ उसूलों और खिदमत की सियासत की है। PTI रहनुमा असद कैसर ने ट्वीट में लिखा कि मेरा फवाद चौधरी से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। इसी तरह फरूख हबीब ने ट्वीट में लिखा कि चेयरमैन PTI के बगैर कोई सियासत नहीं। इसके अलावा हमाद असर ने भी अपने ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ का कारकुन और ओहदेदार हूँ, अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज़ करना चाहें तो उसका हतमी फैसला सिर्फ चेयरमैन PTI करेंगे। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन अहमद कुरैशी ने अपना ट्वीट में कहा है कि अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात नहीं हुई है। मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए उसकी तरदीद कर दी है। साथ ही साथ PTI एक नज़रिए का नाम है, हम तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़े हैं।
ये कहा गया है उनकी जानिब से अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने आज तक सिर्फ असूलों और खिदमत की सियासत की है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरा फवाद चौधरी से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। एक बार फिर से आपको बताएं कि ओपन मार्केट में आज डॉलर 19 रुपए सस्ता हुआ और इस वक्त डॉलर 292 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक बड़ी कमी आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए सस्ता हुआ और इस वक्त डॉलर 292 में फरोख्त हो रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी माहिर खुर्रम हुसैन साहब। खुर्रम हुसैन साहब, बताइएगा अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक ये कमी हुई है, इसकी क्या वजह आपको लग रही है? हमें एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से स्टेटमेंट जो आई है वो कह रहे हैं कि कल जब स्टेट बैंक ने इजाज़त दी थी कि क्रेडिट कार्ड की जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि जो लोग अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं डॉलर और पाउंड और बाहर की करेंसीज की ट्रांजैक्शंस के लिए, उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो ट्रांजैक्शंस अब इंटरबैंक रेट पे क्लियर की जाएंगी। चंद माह पहले जब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर्स की शॉर्टेज थी तो तब गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको क्लियर करने के लिए बैंक्स ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीद के उनको क्लियर किया करेंगे। कल से ये इस फैसले को रिवर्स कर दिया है और इंटरबैंक में इजाज़त दे दी है। इसकी वजह से ओपन मार्केट के ऊपर जितना प्रेशर था क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर्स की अवेलेबिलिटी अरेंज करने का, वो प्रेशर उतर गया एकदम से। और एक्सचेंज कंपनीज के कहने के मुताबिक इसकी वजह से एकदम से आज के दिन डॉलर की प्राइस में कमी आई है। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि ये कमी सिर्फ आज के दिन के लिए है या आने वाले दिनों में भी आप मुस्बत खबरें, मुस्बत असरात इसके देख रहे हैं? इसका एक वन टाइम इम्पैक्ट होगा। हो सकता है कि वो आज ही पूरा दिन क्लियर हो के जो भी आज क्लोजिंग प्राइस होगी उस पर फिर डॉलर स्टडी हो जाए, या हो सकता है कि कल के दिन भी इसका इम्पैक्ट आता रहे। ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। जहां इंटरबैंक में अगर कोई 285 तक के इर्द गिर्द डॉलर चल रहा है तो उससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो अभी अगर जैसे आपने कहा है कि 292 में डॉलर हो गया है ओपन मार्केट में, तो मजीद चंद रुपयों की और गुंजाइश होगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वन टाइम इम्पैक्ट होगा, कल के दिन में भी हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, तो क्या आपके ख्याल में ऐसी हिकमत अमली बनाई जा सकती है कि ये प्रोलॉन्ग हो जाए? जब तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला इम्प्रूव ना होंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो ये जो अभी इतना बड़ा गैप आ गया था इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान, ये एक अननेचुरल डेवलपमेंट थी। इसको तो सॉर्ट आउट कर दिया है, लेकिन इंटरबैंक में अगर रेट को कम करना है तो उसके लिए फिर ज़र मुबादला को इंक्रीज करना बड़ा ज़रूरी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके लिए ज़र मुबादला को इम्प्रूव करना होगा, ज़र मुबादला को इंक्रीज़ करना होगा, तभी हम मुस्तकिल तौर पर रुपए की हम देख सकें कि कदर में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे खुर्रम साहब। और यहाँ पर अहम खबर देंगे, बलूचिस्तान के इलाके सुगवान में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक पहले से अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों के हमले का जवाब दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशत गर्दों को पीछे धकेल दिया। फायरिंग के शदीद तबादले के नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। जाम शहादत नोश करने वालों में सिपाही हसनैन इश्तियाक और सिपाही इनायतुल्लाह शामिल हैं। बलूचिस्तान का इलाका है सुगवान, जहां पर दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। बलूचिस्तान के इलाके सुगवान में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर यह हमला किया है और ISPR के मुताबिक पहले से अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों के हमले का जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशत गर्दों को पीछे धकेल दिया। फायरिंग के शदीद तबादले के नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। जाम शहादत नोश करने वालों में सिपाही हसनैन इश्तियाक और सिपाही इनायतुल्लाह शामिल हैं। तो बलूचिस्तान का इलाका है सुगवान, जहां पर दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक साजिद, बताइएगा इस पर। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया पाक ईरान का सरहदी इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ पर, और जहाँ पर दहशत गर्दों ने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पोस्ट थी सिंगवान के इलाके में उस पर जो है वो हमला किया, उसको टारगेट किया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से वहाँ पर अलर्ट थी, उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया और दहशत गर्दों को पीछे धकेल दिया।
इस लड़ाई के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले के नतीजे में जो 2 सिपाही हैं पाक फौज के वो जामे शहादत नोश कर गए, जिसमें सिपाही हसनैन इश्तियाक जिनकी 34 साल उम्र थी और डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक था, और सिपाही इनायतुल्लाह 27 साल इनकी उम्र थी और इनका जलमक्सी से ताल्लुक था। दोनों ने वतन के लिए लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। ISPR की जानब से ये बात बताई गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रखा है और ईरानी जो बॉर्डर हुकाम है उनके साथ भी राब्ते में, ताकि दहशत गर्दों के फरार के तमाम रास्ते मसदूद किए जाएं। और इस अज़म का इरादा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम के तावन के साथ बलोचिस्तान में अमन और खुशहाली की कोशिशों को नाकाम बनाने के हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और अहम केस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज सुप्रीम लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल आप क्या कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले ये कानून कई और उमूर को भी डील करता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा opinion आसिया कौसर से। आसिया, बताएगा क्या समाअत हुई है? जी बिल्कुल, ये अदालती इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिनसे है उसका नजरसानी से का फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया और अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 2 कवानीन जो है वो बनाए गए हैं और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हालिया कानून साजी दरख्वास्तों से मुताल्लिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 3 और नजरसानी कानून दोनों में कुछ शिके जो है वो एक जैसी हैं और दोनों कवानीन का बाहमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जो है वो जायजा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामले पर कानून साजी अदलिया के मशवरे से नहीं हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से अब कानून में मजीद तरमीम जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों कवानीन के अलावा दीगर मामलात में भी जो है वो मुशावरत होगी। मैं आपको ये बताऊँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज सुप्रीम लार्जर बेंच ने इस केस की आज इस कानून में मजीद तरमीम होंगी, इस पर मुशावरत भी होगी। आसिया कौसर हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।